Now, uh, in the previous lecture, we have seen that what is an ideal questionnaire. Now, we all want to collect information. Now, in order to collect information, we go for method of questionnaire. Method of questionnaire means we go with a questionnaire. Okay, we make a questionnaire, and with the help of this questionnaire, we try to collect information. Now, method of questionnaire में the first method is questionnaire by post. Now let's understand this, what is questionnaire by post. So let's say, for example, this is a questionnaire you have made. So what you will do with this questionnaire is you will fold it, you will put it in an envelope, say, pardon me for my drawing, okay. Chalo, good. Now we'll put it in the envelope, okay. And what we will do is we will send it to various people. Say, for example, I am conducting a survey on doctors, the challenges or their experiences, what they faced during this last one year plus almost 1 year, 3 months pandemic time. So, what was their experience? I want to collect information. So, what I did is I made a questionnaire, ideal questionnaire, and I put them in this envelope and I started sending it to all the people. Now, let's say a similar survey I'm doing on students. Ki we start sending you a questionnaire regarding various career options you are thinking of, your various preferences, your various choices, okay, your thought processes at this age where you are in your late teenage. So what I'll do is I'll make a questionnaire, put it in the envelope, and send it to you at your home. Honestly tell me, by raising your hand, how many of you will give, open that envelope, see the questionnaire, and properly, genuinely fill that up? How many of you? बोला एक भी नहीं, एक भी नहीं. अच्छा एक, हाँ चलो सर को खुश करने के लिए हाथ रेज कर लेते हैं. Okay, I will agree with all of you, those who have not raised your hand, that अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, हाँ अप्रोप्रिएट है, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं भी भरता. We all are Gujaratis. Okay, गुजरात में रहने वाले तो फायदो ना થાય તો આપણે કઈ કામ કરવાનું नहीं, મને શું મળશે. बट तुम्हें ऐसा टास्क दिया है कि तुम्हें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है यही मेथड से, तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? तुम क्या क्या ऐसा कर सकते हो जिससे तुम लोगों को मोटिवेट कर सकते हो कि वो तुम्हारा क्वेश्चन है भरे? कैन एनीवन से गिव मी आइडियाज? या देव, यू वांट टू स्पीक? सर हम वो पोस्ट के साथ कुछ डिस्काउंट कूपन्स बेच सकते हैं कि फिल करो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा. बहुत डिस्काउंट पसंद है, बहुत डिस्काउंट पसंद है. गुजराती એટલે પતી ગયું. डिस्काउंट 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 डिस्काउंट. Very good. We can send something which they will be using it and getting benefit, जैसे कि discount coupon. Yes, yes, I would really appreciate. Yes, Param has said lucky draw. That's true. Lucky draw. Now ध्यान दो, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है. और रीडर्स डाइजेस्ट, डू यू नो व्हाट इज रीडर्स डाइजेस्ट? किसी को पता है व्हाट इज रीडर डाइजेस्ट? ओ मैं तो भूल ही गया कि तुम्हारे एरा में तो कोई बुक्स पढ़ता ही नहीं है. आई ला,
रीडर डाइजेस्ट ना ऐसे एक छोटे साइज का बुक आता है, ओके, एकदम इतने छोटे साइज का, और लोग उसको बहुत पहले सब्सक्राइब करते थे जब ये इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग, ई बुक और इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग और मोबाइल इंटरनेट और ये सब इतना पॉपुलर और इजीली अवेलेबल नहीं था. सो इट वाज अ वेरी गुड बुक फॉर improving your English. Very nice stories, very nice topics are covered in Reader Digest. Now Reader Digest क्या करता है, उसका पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए लोगों को मेल्स भेजता है ऐसे पोस्ट पे, और उसमें ये ट्राई टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ योर फ्रेंड्स कि तुम्हारे 14 फ्रेंड्स के एड्रेस दो एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर अ लकी ड्रॉ, जिसमें तुम 1 लाख रुपए जीतोगे, 10 लाख रुपए जीतोगे, 15 लाख रुपए जीतोगे. सो इफ तुम्हारे घर पे रीडर डाइजेस्ट अगर पहले आता हो तो तुम्हें ये पता होगा, और नहीं आता और तुम्हारे पेरेंट्स ये सब पढ़ते थे पहले, तो तुम उनको पूछ सकते हो रीडर डाइजेस्ट क्या है, पता है, तो इवन तुम गूगल करके देख सकते हो. तो ये लोग क्या करते, इस तरह से प्रमोशंस रन करते. तो राइटली सेड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट कि सर मोटिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हम उनको देंगे डिस्काउंट कूपन. सर राइट ओवर हियर, ओके, डिस्काउंट कूपन. Then we will say कि by answering the questionnaire you will be eligible for lucky draw. Okay. Rudra has raised his hand. Yeah, Rudra, you can speak. વચ્ચે છે ને તમારું નેટ અમુક એ થાય પોઝ થઈ જાય છે ને, તો વિડિયો અને ઓડિયો બંને ચીપકે છે. વિડિયો ઓડિયો ઇન્ટરનેટ નો ઇશ્યુ છે એટલે એવું થઈ જાય છે. હવે બરાબર આવે છે? Are you clear now? Okay. Now that's why I'm also writing, so that a network issue હોય so you can read and you can understand what points I'm discussing about. Now lucky draw coupons, that is also a very good one. See, it used to happen. See, one student has also talked about a limitation. Param, I'll come to that later. Okay. Now when I used to work in General Motors, okay, anyone who is buying a new car, okay, so what happens when anyone buys a new car, they have a car delivery process at the showroom. आजकल तुम देखोगे तो लोग गाड़ी खरीदने जाते हैं तो ऐसे पोस्ट रखते हैं कि गाड़ी पे रिबन लगा है, फिर वो गाड़ी की चाबी लेके खड़ा है, फोटो खिंचा रहे हैं, बलून्स है, कितनी बार केक कटिंग है. फिर जब आप गाड़ी का डिलीवरी लेने जाते हो तो बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है. तो बेसिकली as a company, General Motors, we want to ensure that the car delivery is done very well by the dealers, because car is a very emotional moment for a person. तो सपना होता है लोगों का एक गाड़ी हो और एक बंगला हो या फ्लैट हो. अब तो फ्लैट की बात करेंगे हम. गाड़ी हो और बंगला हो. तो गाड़ी is a very like emotional moment for the person who is buying their cars. तो वो प्रोसेस कैसा रहा, क्या डीलर्स ने बराबर उनको अटेंड किया, कार वॉज प्रॉपरली क्लीन, एवरीथिंग वॉज प्रॉपरली अरेंज, हाउ मच टाइम इट टुक फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ओके, वर दे प्रॉपरली ट्रीटेड, वर दे गिवन सम गिफ्ट. तो ऐसा पूरा एक क्वेश्चन है उनको गाड़ी के साथ डिलीवरी के साथ दिया जाता था. बट एज वी राइटली से, किसी को ऐसा कुछ भी भरने में इंटरेस्ट होता नहीं है. तो तब हमारी कंपनी ने ऐसा स्कीम निकाला था कि जो भी इसको भरेगा तो लकी ड्रॉ होगा, और लकी ड्रॉ में यू विल गेट अ गोल्ड कॉइन. तो दिस इज हाउ वी मोटिवेट पीपल टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन. यू अंडरस्टूड दिस? और जेन्युइनली होता था. ओके, जेन्युइनली लकी ड्रॉ होता था और गिफ्ट्स दिए जाते थे. तो मोटिवेट करने के लिए एक है कि डिस्काउंट, दूसरा है लकी ड्रॉ, तीसरा है स्टूडेंट से कि यस सर वी सेंड अ गिफ्ट. हाँ, गिफ्ट भेजो, ताकि आज मान लो तुम्हारे घर मैंने एनवलप भेजा और उसके साथ एक कैलेंडर है, एक कीचेन है, एक हाथ में पहनने वाला बैंड है, फ्रेंडशिप बैंड है, ऐसा कुछ मैंने भेजा, तो शायद तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ हाँ मुझे कहीं फ्री में मळ्યું तो ચાલો ભરી દો. મફતમાં કઈ લેવું નથી, મફતમાં લીધેલું પચે नहीं. ऐसा हो सकता है?
तो तुम्हें मोटिवेशन आया कि ओहो मफत મળ્યું पर मफतમાં ना लेવું જોઈએ, उन्होंने खर्चा किया, मुझे एनवलप पे लिख के ये सब भेजा, कागज का प्रिंट आउट निकाला, चलो भर लेते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, तुमने चलो मोटिवेशन से या लालच से, या मोटिवेशन से या लालच से ये तुमने भर भी दिया, पर क्या तुम्हारे पास अब तुम इसको जाके वापस कुरियर करोगे? कुरियर करोगे? हाँ या ना तो बोलो, करोगे? खर्चा करोगे? खर्चा करोगे? नहीं सर। नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नहीं करेंगे। मारे सो गिफ्ट मरी गई, मजा आई गई, हार के फेंको इसको। नाउ तुम्हें ये टास्क दिया है तो तुम्हें करना है, तो कैसे करोगे? तो तुम क्या करोगे, तुम अगर वो कंपनी हो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले तुम्हें ये क्वेश्चनर के साथ एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजना है। वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट क्या है? वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट ये है जो बताता है कि आपको ये जो क्वेश्चनर है वो आप प्लीज भरिए, और वो बहुत अट्रैक्टिव बनाऊंगा मैं, ओके? आप ये भरिए, इससे आपको या पूरे समाज को या पूरी दुनिया को बेनिफिट होगा। तो एक इमोशनल टच दिया। फिर पता है कि यहाँ पे तो गुजराती लोग हैं भाई, इमोशंस में इतना मानते नहीं, सबको चाहिए रोकड़ा, कैश है तो ऐश है, ऐसा सुना है डायलॉग? कैश है तो ऐश है। तो हमने गिफ्ट भी दिया, उनको डिस्काउंट कूपन भी दिया, डिस्काउंट कूपन, गिफ्ट्स, लकी ड्रॉ, ये सब दे दिया हमने उनको। पर उसके बाद वो क्यों अपना खर्चा करके ये लेटर मुझे भेजे? तो मैं क्या करूंगा, दिस इज जनरली डन बाय मेनी ऑफ द मार्केटिंग कंपनीज। मैं ये लेटर के साथ वो बड़े एनवलप के अंदर एक छोटा एनवलप भेजूंगा जिसमें ऑलरेडी स्टैंप लगा होगा, ऑलरेडी मेरा एड्रेस लिखा होगा। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाके इसको सिर्फ वो डब्बे में डाल देना है। तो यहां पे वी हैव टू सेंड अ सेल्फ एड्रेस envelope with postal stamp. Now, I hope तुम ये सब लिख रहे हो पॉइंट्स, ओके? नाउ तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूँ। अब ये सब तो तुम्हारे जमाने में आजकल होता नहीं, बिकॉज आजकल क्वेश्चन जो है वो व्हाट्सएप से आ जाते हैं, गूगल लिंक आ जाता है, गूगल फॉर्म का लिंक आ जाता है, फिर इंटरनेट से लोग क्वेश्चनर भरवा के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। नाउ इवन इंटरनेट से जब वो भरवाते हैं तो यही सब चीज देते हैं, कोई डिस्काउंट कूपन, कोई लकी ड्रॉ, ओके? नाउ सेल्फ एड्रेस एनवलप, हमारे टाइम पे जब ऐसी कोई मार्केटिंग कंपनी हमें बेचती थी तो हम क्या करते थे पता है? लोग क्या करेंगे कि लोग वो क्वेश्चनर ले लेंगे, उसको डब्बे में डाल देंगे, फिर लोग क्या करेंगे, गिफ्ट है वो ले लेंगे, कैलेंडर आ गया रख लिया, कीचेन आ गया यूज कर लिया। नाउ एक ब्लैंक एनवलप भी था, खाली एनवलप जिसमें से उसका एड्रेस और स्टैंप लगा हुआ था। तो लोग क्या करते पता है, वो स्टैंप निकाल लेते और उनको कहीं कम्युनिकेशन करना है तो वो स्टैंप लगा के बेच देते। तो अभी है ना पोस्टल डिपार्टमेंट बहुत स्मार्ट हो गया, अभी है ना ऐसा स्टैंप वाला नहीं आता, ऐसा लिखा हुआ आता है। तुम ये सब ऑब्जर्व करना माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब ऑब्जर्व करना। आई एम श्योर कभी ना कभी ऐसा कोई लेटर आया होगा या आएगा भविष्य में, तो वहां लिखा होगा कि पोस्टेज विल बी पेड बाय द एड्रेसी।
एड्रेस ही आने, जिसका एड्रेस यहाँ पे लिखा है वो इसका पैसा दे देगा, तुम्हें सिर्फ इसको भर के डब्बे में डालना है। अंडरस्टूड दिस? तो हम ये सब करके करते लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन है, भरो 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 पोस्ट में। तो नाउ ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, ये सब पॉइंट्स लिख रहे हो ना? क्योंकि आई थॉट रीडिंग ऑल द टेक्स्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक विल बी बिट बोरिंग, सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द एसेंस ऑफ दिस कंसेप्ट। पता चल गया सबको? नाउ मेथड ऑफ क्वेश्चनर बाय पोस्ट, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? सो लेट्स सी व्हाट आर द एडवांटेजेस of method of questionnaire by post. Can you tell me the advantages? तुम प्लीज टेक्स्ट बुक में मत देख के आंसर देना, नहीं तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा। तुम खुद सोचो कि इसका फायदा क्या है। अगर मेथड है, तुम भी अंदर से कन्विंस होंगे कि ये मेथड बहुत बेकार है, मजा नहीं आएगा, बट ये मेथड का कोई ना कोई तो एडवांटेज होगा ही ना। सबसे सर टाइम बच सकता है। क्या सर टाइम बच सकता है, घर घर जाके भरवा, इससे अच्छा पोस्ट कर दे तो टाइम बच सकता है। टाइम बच जाएगा, बट तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये कितनी बार बहुत लेंदी भी हो जाएगा? It can become lengthy also because you have to post, it will reach, respondent will read, they will then fill it up and then they will send it back. So time, yes, थोड़ा बच सकता है because इसमें किसी के पास जाना नहीं है, कोई काम नहीं, उसको जाके कुछ पूछना नहीं है, डायरेक्टली भेज दिया, उसने भर दिया। तो we can say yes, relatively lesser time. Okay, then the people are typing in the chat box. Okay, let me see. Less money. Okay, Param has written less money. Mahi, are you there? Mahi, हाँ माही, તે શું લખ્યું છે જરા મને સમજાવો ને. મીન્સ જે પર્સન છે એને પર્સનલી આપણે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. પર ક્વેશ્ચનર બાય પોસ્ટ એનો મતલબ એની આપણે ક્વોલિફિકેશન્સ જાણી શકીએ એમાં, એને શું વધારે પસંદ છે એમાં. એટલે આપણે પર્સનલી જઈએ તો આપણને એવું બધું નહીં કે હા એવું થઈ શકે. મીન્સ એમાં એનો ઇન્ટરેસ્ટ ખબર પડી શકે કે એને કેટલા સુધીની વસ્તુ ગમશે નહીં ગમે. બરાબર બરાબર છે. કોને ઇન્ટરેસ્ટ હશે વસ્તુ લેવામાં. Okay, so certain things, people don't want to talk about it even though it is a questionnaire, and if you go with it they may be hesitant कि नहीं मुझे ये नहीं पढ़ना है. So sometimes certain information people want to talk about it but they don't want to talk about it openly. They don't want to reveal certain information which we can collect through questionnaire by post. Okay, I can take that point. Okay, very good. फिर less energy. Okay, Karima has said less energy. Obviously less energy क्योंकि एक क्वेश्चनर बनाया और उनको भेज दिया. अब ये सब सही है, टाइम, मनी, एनर्जी. हाँ देव बोलो ना भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक. सर अगर एरिया बड़ा हो तो ज्यादा क्विकली चला जाएगा. हाँ यही तो सबसे बड़ा फायदा है मेरे प्यारे बच्चों. जागो जो सो रहे हैं, जो सोते सोते लेक्चर देख रहे हैं, जागो, कैमरा ऑन करो. नाउ दिस इज क्वेश्चनर बाय पोस्ट, so you can cover the whole world. तुम्हें कोई भी सर्वे करना है, why just doctors across the country? You send it doctors across the world because तुम्हें तो जाना है नहीं, तुम्हें सिर्फ कुरियर कर देना है, तुम्हें पोस्ट से भेजना है. अगर तुमने एक गूगल लिंक बनाया और तुम्हें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका, so what you will do, you just WhatsApp the link. Can you not cover the whole of the world?
You agree with me or not? Yes, sir. You agree with me? So method of questionnaire by post में we can cover a vast geographical area. Please write this. We can cover a vast geographical area, lesser time, lesser money, lesser energy, यानी less expensive, and we can reach people or collect information which we cannot directly get access to. So reach people where it is difficult. Now, in this pandemic situation, okay, you want to collect information, so you may not like to go and personally visit the respondents. So what you do is you make a questionnaire using Google Forms, okay, and you send it to people, WhatsApp it, message it, email it. So that's how you collect information. All of you understood the advantages? किसी को कोई डाउट इसमें? रुद्र? नो सर. अच्छा, હવે મારો અવાજ બરાબર આવે છે? हाँ हाँ. ओके, नाउ ये हो गए एडवांटेजेस, बट जैसे एडवांटेजेस है वैसे डिसएडवांटेजेस भी है. सो लेट्स चेक व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस. कैन यू टेल मी द डिसएडवांटेजेस? तुम खुद अपने आप के बारे में सोचो कि ऐसा कुछ आया तुम्हारे पास तो क्या तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट होगा इसे बढ़ने में? Sir, there is no surety that the respondent will fill it and return. Absolutely no surety of getting this information. कोई इसको भरेगा नहीं भरेगा कोई भी गारंटी नहीं है. दूसरा, और कोई उसे रिपोस्ट भी नहीं करेगा पैसे खर्च करके. एब्सोल्युटली. क्या उसके लिए तो हम उसको वो एनवलप भेज रहे हैं कि भाई देखो तुम भरो, गिफ्ट लो, पर प्लीज भर के भेजो. तो नो श्योरिटी तो है ही. फिर wrong answers. Yes, very good. Param has written wrong answers. Very good. Nandini has written incomplete information. Then less accuracy given by Nirmal. I'm so happy नए नए नाम मुझे बोलने को मिल रहा है. प्लीज अपना नाम लिखो, कुछ टाइप करो तो I'll be so happy to speak out your name. Now, हाँ लगता है किसी ने टेक्स्ट बुक्स भी खोल दी है इसमें. सर કોઈને પહોંચ્યું ના પહોંચ્યું. Less accuracy, yes. Postal delay, I'll come to it. So do not fill the full form is already covered, Jill, in incomplete information. Okay, then illiterate. Those who are illiterate, they cannot give reply to it because उसको पढ़ना ही नहीं आता है. तो बराबर illiterate. Then 6, फिर मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है कितनी बार, बिकॉज अगर उसको समझ नहीं रॉन्ग रिप्लाई दे दिया, गलत ऑप्शन मार्क कर दिया. सो मिस इंटरप्रिटेशन. वेरी गुड. रुद्र, व्हाट डिड यू से? સર કે અગર પોસ્ટ કર્યું પણ પહોંચે ના પહોંચ્યું એ પણ આપણને ખબર. delays. वेरी ट्रू कि पोस्ट किया, मिला नहीं मिला. अभी तो अपना पोस्टल डिपार्टमेंट बहुत ही एफिशिएंट हो गया. इट इज वेरी गुड, अमेजिंग. बट बरसों पहले ऐसा होता था कि पोस्टल डिले में वो क्वेश्चन है राइट लोगों के पास पहुंचा नहीं, और राइट लोगों के पास पहुंचा, राइट लोगों ने भरा, पर हमारे पास वो वापस आया नहीं. तो दैट्स ट्रू. वेरी गुड. Low response rate. Well, very good. Low response rate. Yes, 8 point I'll write.
there is a wastage of money of sender. Yeah, absolutely. But આમાં કેવું છે દેવ કે કોસ્ટ એટલો ઓછો થાય છે ને કે એવો કોઈ ફરક પડતો નથી. એટલે it's like not big amount because you're doing it questionnaire by post. You just think that you have to meet 1000 people and you want to collect information from 1000 people through post. So Postmate is so easy. You just take a printout, make a cover, put it in the envelope, give an extra envelope, and then just send it and then get the information. Yes, Keval, you can speak. Okay, Param has also highlighted one interesting point. देखो नेगेटिव तो हम कितना जबरदस्त सोचते हैं अलग लेवल पे. Yes, yes, someone can misuse the information if it is gone in the wrong hands. Yes, possibility है. लोगों को दूसरे के कवर खोल खोल के पढ़ने में बहुत मजा आता है. तभी तो लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक हो जाते हैं. लोगों के एनवलप खोलने में बहुत मजा कि इसके अंदर क्या लिखा होगा. लोग हैक करते, लोगों के मैसेजेस पढ़ते, इसमें से मैसेजेस भी करते. तो दैट्स ट्रू कि क्वेश्चनर बाय पोस्ट है तो कहीं गलत हाथों में चला गया तो हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, वाइटल इंफॉर्मेशन बाहर आ जाए. दैट्स ट्रू, आई एग्री विथ यू. देन dishonest answers, yes, correct. And then wasting money on gifts. Yes, yes, it's not wasting, it is investing. अगर मैंने 10,000 लोगों को भेजा और उसमें से अगर मान लो 3,000 ने भी रिप्लाई किया तो it is worth. Okay, then that cost is worth. Now some students are saying that कि सर आपका आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, तो प्लीज बेयर विथ मी. अगर कोई इंटरनेट इश्यू है तो ये लेक्चर में हमारे ऐप पे रख दूंगा. ओके, चलो बढ़िया. अभी बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं और सब जो हमने लिखे हैं उससे ही कनेक्टेड है, तो आप प्लीज ये सब पॉइंट्स लिख लें. Now, see, because we know there are so many disadvantages in method of questionnaire by post. So what we do is we go for the second method, that is method of questionnaire by enumerators. Now this is really interesting. Now what is method of questionnaire by enumerators? It means very simple. Try to understand this. Now what happens? Now you have a questionnaire with you. You know कि पोस्ट में भेजने से कोई फायदा ऐसा होता नहीं है. Yes, we can cover a vast geographical area, but then there are lots of drawbacks. Now, if money is not a problem for me, and I really want very accurate information, please ध्यान देना सब. अब नेट कनेक्शन भी improve हो गया है. If money is not a problem and I want very accurate information, so what I will do is I will make a questionnaire, an ideal questionnaire, and I will appoint people who will go and collect information for me. Now, who are those people? Those people are known as enumerators. Enumerators, यानी क्या? You please write once again. Enumerators. Now see, enumerator. Who is an enumerator? Enumerator are people or persons who collect information. Who are respondents
please write. Respondents are persons. Obviously, you can say, sir, respondents are person who respond. Yes, they are the person who responds. So they are the persons from whom information is to be collected. So here, if I want to collect information, I have money also, I have time also, and I have a good team of enumerators, and I want accurate information. So I will send my enumerators with a questionnaire. They will go and meet the respondent. सामने वाले को मिलेंगे और उससे सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. सबको ये पता चल गया. अब इसमें बिकॉज एक पर्सन जा रहा है और उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एन्यूमरेटर शुड बी ट्रेन्ड. अगर एन्यूमरेटर प्रॉपरली ट्रेन्ड नहीं है तो वो भले क्वेश्चनर लेके गया है पर सामने वाला उसको रिस्पॉन्ड करेगा नहीं. तो एन्यूमरेटर्स को क्या करना है? एन्यूमरेटर्स को जाके सामने वाले को ग्रीट व्हेन दे मीट. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज ग्रीट व्हेन दे मीट. यानी अगर मिले तो ग्रीट करो. ओके, थोड़े प्रेजेंटेबल होके जाओ. ओके, प्रॉपरली, नीटली, वेरी वेल ड्रेस्ड, प्रॉपरली ग्रूम्ड. You go, politely greet, try to create a very warm and a friendly environment. तो सामने वाले को तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट आएगा और वो तुम्हें इंफॉर्मेशन इजीली दे देगा. तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जाता है वो इंसान कैसा है. अगर वो सही नहीं है तो कोई इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलेगा नहीं. So it is very important that these enumerators have to be trained, they have to be honest, they have to be polite, they have to be courteous, they have to be neatly dressed with a pleasing personality and always carrying a smile. और ये सब तुम्हारी रियल लाइफ में भी तुम्हें काम आएगा. When you will go for job interview, when you will be meeting people, so they have to ensure that they create a very friendly and a warm environment. बिकॉज सामने वाला तो ही क्वेश्चंस का रिप्लाई प्रॉपरली देगा, तो ही मेरा सर्वे जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूँ वो जेन्युइन और यूजफुल इंफॉर्मेशन रहेगा. अदरवाइज कुछ भी आ गया तो मेरा हो सकता है उसके बेस पे जो डिसीजन लिया वो गलत हो गया. नाउ अगर कोई एन्यूमरेटर ट्रेंड नहीं है और वो गया और उसने ये उसके टेबल पे ऐसे रखा, आप भरी दो ने, बोलेगा चल निकल, आप भरी दो ने, सर प्लीज आप भरी आपो ने, सर 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 सर. अरे व्हाट द हेल मैन. तो these are the things which we have to take care, because ऐसे I have seen people चिपक जाते. सर नाम आपो ने, नाम लकी ड्रॉ છે સર, નામ આપો. અલા હું ભાઈ કોણ છે તું ભાઈ? who are you? અરે who are you? નિકલ ઇધર से. So these are the things we have to keep in mind, because questionnaire by enumerators में information चाहिए, but वो it is very similar to method of direct inquiry where you go and meet the people and directly collect the information. तो enumerator बहुत ही skilled होना चाहिए. I hope all of you will agree with me. Now, इसमें तुम गए, बहुत वार्म एनवायरनमेंट, एकदम फ्रेंडली एनवायरनमेंट, सामने वाले को तुम्हारे पे ट्रस्ट आ गया कि हाँ कोई बात नहीं, आई थिंक ये जेन्युइन है और ये क्वेश्चनर भी जेन्युइन है, मुझे जेन्युइनली रिप्लाई करना है. सो वो सब इंफॉर्मेशन तुम्हें देगा, तो एवरीथिंग इज फाइन. तो यहाँ पे ये मेथड के भी कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस है. तो चलो बच्चों मुझे बताओ इस मेथड के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं. तो मैं इसको
दो हिस्से में डिवाइड कर देता हूं. एडवांटेजेस, या देव? Sir, we can get proper information from the respondents. Very true. We can get complete. And sir, if the respondent is having any doubt, the enumerator can explain it and Okay. when the Pick a minute. I'm not so fast in writing. Hold on. Complete, correct, and relevant information. यानी काम का information. Relevant information. Okay, let me use the eraser. Okay. Second क्या कहा था देव तुमने? sir, the enumerator can explain the questions which the respondent is not able to understand. Yes, very good. See, अगर सामने वाला जो है, ओके, मान लो वो इलिटरेट है, तो इलिटरेट लोगों से भी इंफॉर्मेशन निकलवाना है तो मैं उसको क्वेश्चनर दे दूंगा, तो हो सकता है उसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है. पर अगर मैं खुद गया हूं तो मैंने जो इंग्लिश में लिखा है वो मैं उसको ट्रांसलेट करके पूछ सकता हूँ. वो जो बोलता है उसको मैं ट्रांसलेट करके ऑप्शन टिक कर सकता हूँ, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूँ. तो यस, एब्सोल्युटली. देव, इज दैट योर पॉइंट? Yes, sir. Okay, so can you just once again tell me your point? I'll write that. Sir, the enumerator can explain the questions written in the question and the respondent. Explanations. Okay, this word went out of my mind. So explanation can be given, and even illiterate. Okay, I'll just rephrase it. Explanation and information can be collected from illiterate or uneducated people also. Okay, next, doubts. Yes, doubts can be solved. Doubts can be clarified. Then harmful questions can be avoided. Yeah, obviously that, but yes, more reliable. You can say your information collected is more reliable, more accurate. There is no loss. There is no problem of loss of questionnaire. So no problem of loss of questionnaire. यानी यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं कि क्वेश्चनर खो गया, नहीं मिला, किसी ने जवाब नहीं दिया है. Full assurance. Yes, someone say wide coverage. No, we can't say that wide coverage over here, because here I want to go and meet people, so I can collect information maximum from doctors of Baroda, but collecting information from doctors of Gujarat or doctors of whole country by directly contacting them would become very difficult. So in fact, here it is a disadvantage that we can collect information only from a limited or a smaller area, not a wider area. Yes, and yes, I would agree that it's a nice method of collecting information because respondents know कि सामने वाला कौन है और कौन सा information collect कर रहा है. So that point can be taken. That's right, Mahi. Now, sensitive information or confidential information. Okay, now in that cases, okay, if you go directly, then by asking supplementary questions, we can collect those information. For example, किसी को, मैंने ये पहले भी बताया था मेथड ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी में, कि किसी को पूछा कि कितना कमा लेता है तू, सर आप कितना कमाते हो बताओ ना मेरे को सर.
आपकी लड़की कुंवारी है सर? है? ऐसे मूवी में देखा है मैंने, गोविंदा की एक मूवी में ऐसा ही था, वो ऐसा पूछता है। तो बेसिकली ये सब क्वेश्चंस कोई जनरली देना नहीं चाहता. दीज आर पर्सनल क्वेश्चंस, पीपल डोंट लाइक टू डाइवर्ज दिस इंफॉर्मेशन. तो उसमें इफ यू वांट टू नो द इनकम, then we can ask supplementary question like which house you are, where are you staying, which area, houses owned, houses rented, what vehicle, what holidays, which are your favorite brands. So that's how we can do, because we are directly going. So see, most of the advantages, students, what you have said over here are basically the same advantages of methods of direct inquiry. All of you will agree with me? Now, Yes, sir. Dev, you want to say anything? No, sir. તો હાથ નીચે કર દે. મને પંજો દેખાય છે ને એટલે મને પછી ડર લાગે છે. રાહુલ ગાંધી યાદ આવે. Okay, okay. Now, what are the disadvantage? चलो, पहला आंसर जो मेरे पास आया है डिसएडवांटेज. अच्छा, एडवांटेजेस में कुछ और पॉइंट बच्चों ने लिखे. आई जस्ट रीड आउट बिफोर वी गो. That is no incomplete answer. Yes, I'll agree with you. तो जिन्होंने लिखा है वो भी करेक्ट है, उसका एडवांटेज ही है. So यहाँ पे I can include, if you want, the 6th point is, let's go green. Complete information can be obtained. I agree with you. Okay, I think now most of them are done. Now disadvantage में पहला आंसर मेरे पास आया है, और वो सबको पता ही है कि एन्यूमरेटर के ऊपर दिस मेथड इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द एन्यूमरेटर. सो एन्यूमरेटर्स हैव टू बी ऑनेस्ट, दे हैव टू बी डिलिजेंट, दे हैव टू बी स्किलफुल. ये सब वर्ड्स तुम्हें लिखने पड़ेंगे एग्जाम में. ओके, अगर वो नहीं है तो फिर गए काम से. सो यहाँ पे सबसे पहला तो चैलेंज यही है कि अच्छे एन्यूमरेटर्स मिलना बहुत मुश्किल है. सो डिफिकल्ट टू गेट एक्सपर्ट. ओके, राइट ऑन द नेक्स्ट पेज. Expert enumerators. Very difficult to find expert enumerators, क्योंकि मैंने जो तुम्हें क्वालिटीज बताई, ओके, वो क्वालिटी वाले लोग मिलना सही में बहुत मुश्किल है. सही में बहुत मुश्किल है कि हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, स्किलफुल, प्लीजिंग पर्सनालिटी, वेरी गुड इंटेलेक्ट लेवल, वेरी गुड लैंग्वेज. ओ सर, हम तो मास प्रमोशन वाले हैं, अब हमको ये सब क्यों बता रहे हो? तो ये सब क्वालिटीज हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर एन्यूमरेटर हमें चाहिए, जो मान लो डॉक्टर्स को मिलने जाता है, तो प्रॉपर एन्यूमरेटर चाहिए. अब ऐसे एक्सपर्ट एन्यूमरेटर्स मिलेंगे कहाँ से? तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि हाउ डू वी फाइंड सच पीपल. So one of the disadvantages is difficult to find expert enumerators. Then selfish enumerators. Yes, so that is why I said कि expert enumerator नहीं है तो फिर वो useless है. वो उसका या communication सही नहीं है, या वो biased है, या वो honest नहीं है, या वो efficient नहीं है. तो ये हमारा पूरा task गया काम से. So first point is, I'll say, lack of expert enumerators, lack of it. Okay. Then more expensive. Yes, I will agree with you. It is more expensive. So more time consuming. Time is money and expensive. Okay, then not skilled enumerators. Yes, so lack of expert enumerators, and we can say that
instead of saying ki they are not skilled and all, we can say that difficult to train enumerators. That's also given in the textbooks. I'm doing a combination of your inputs and textbook. Difficult to train enumerators. और तुम देखो कितना हमारे देश के लोगों को ये टेक्स्ट बुक पहचानता है. नाउ ट्रेन एन्यूमरेटर्स, ध्यान दो, इसमें ऐसा कहा है टेक्स्ट बुक में कि इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेन एन्यूमरेटर्स, पर ऐसा भी लिखा है कि इवन आफ्टर ट्रेनिंग इट, ऐसा मान लेना, इट इज नॉट प्रॉपर. यू लिसन टू मी, ओके, इट्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक, आई एम रीडिंग दैट. इट इज नॉट प्रॉपर टू बिलीव दैट दे विल वर्क स्किलफुली, honestly and efficiently. इतना ट्रेनिंग दिया, इतने साल कि एग्जाम में कॉपी मत मारो, मत मारो, मत मारो. आगे तुम सब जानो. तो बहुत ट्रेन किया, बट फिर भी ये मान लेना कि वो स्किलफुल हो गए, ऑनेस्ट हो गए, एफिशिएंट हो गए, वो प्रॉपर नहीं. ऐसा गलत भी हो सकता है. नाउ इसकी वजह से द इंफॉर्मेशन इफ वी कलेक्ट फ्रॉम सच एन्यूमरेटर्स विल नॉट बी रिलायबल. ओके, या देव, अगेन तूने मेरे को पंजा दिखाया, बोलो देव. Sir, only a small area is covered in this method. Obviously. So I'll write that limited field of inquiry is what I would say. Okay, limited. Fourth is limited field of inquiry. Okay, then let me see the chat box. Wastage of time. I would not use the word wastage of time, Dev, because here it is not wastage of time, but we can say it takes more time. It is more time consuming, and it is also expensive because you need large number of enumerators. So you can write over here large number of enumerators. Okay, then cost of inquiry, yes, expensive, Krishna. Then Shreya, they can cover a specific area, yes, very true, Shreya, that's right. So limited field of inquiry, huge time, efforts and money. Agree? Yes, a very interesting point is put forward by Parab, that if the person is busy, the enumerator has to wait for until he is free. Now see, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अब अगर रिस्पोंडेंट के पास जाना है तो गेटिंग अपॉइंटमेंट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट मेनी अ टाइम्स, बिकॉज जैसे ही तुम्हें फोन आया कि सर मैं ये बोल रही हूँ सर, सर आप प्लीज मुझे मिलेंगे सर, क्या आप अवेलेबल हैं सर, सर आपकी अपॉइंटमेंट मिल सकती है. तो आवाज बहुत ही मीठा था, पर मेरे पास टाइम ही नहीं है ना बेन, फोन मुकी दो. ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता. इतने कॉल्स आते मुझे बिकॉज मेरा नाम यहाँ के सीए इंस्टीट्यूट की डायरेक्टरी में है विद नंबर. अरे दुनिया भर के फोन आते. मुझे ऐसा लगता है अननोन नंबर, चलो एडमिशन आया, फोन उठा लो. गुड इवनिंग सर, मैं ये इन्फोटेक कंपनी से बोल रही हूँ सर, आपको एक मोबाइल ऐप में इंटरेस्ट है. अरे रख यार, मोबाइल ऐप पे कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो यहाँ पे अगर ये तो कुछ बेचने के लिए फोन कर रहे हैं मेरे को, तो शायद मेरे काम का कोई फोन आ भी जाए, बट इंक्वायरी के लिए कि सर मैं हुंडई कंपनी से बोल रही हूँ सर, आपकी गाड़ी जो सर्विस कराई उसके लिए हम सर्वे कर रहे हैं सर, सर आपका हम सिर्फ 10 मिनट लेना चाहेंगे सर, आपके पास 10 मिनट्स है? ला है क्या, रख फोन, नहीं है मेरे पास टाइम.
पर उनको टास्क दिया है। तुम देखो ये प्रैक्टिकली होता है, तुम सबके पास व्हीकल पेरेंट्स के पास है ही, isn't it? और जिस दिन ऑफलाइन चालू होगा कितनों को नया व्हीकल भी मिलेगा। 10th में इतना अच्छा रिजल्ट आया ना सर अब। So okay, I'm not taunting, okay? I'm sure now, तो जैसे ही तुम्हारा व्हीकल सर्विस से घर पे आया तो सर्विस सेंटर से कुछ दिन बाद फॉलोअप कॉल आता है, सर्वे कॉल आता है। तो तुमने एक बार तो रख दिया, पर फिर वो वापस भी कॉल करते हैं, दो बार रख दिया तो तीसरी बार कॉल करेंगे। यानी यू कैन सी कि कितना टाइम उनका वेस्ट हो रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे रिस्पोंडेंट में नॉट गिव अपॉइंटमेंट, डॉक्टर विल से आई एम वेरी बिजी, आई डोंट वांट टू मीट यू, प्लीज डोंट बग मी, गेट लॉस्ट, आगे दोबारा फोन मत करना, तुम्हें मेरा नंबर मिला कहां से? ऐसा पेरेंट्स पूछते हैं हमें कि बहुत बहुत एम्बेरेसिंग होता है हमारे लिए कि हम फोन करके पूछते हैं कि सर क्या रिजल्ट आया आपके चाइल्ड का, साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है? ए बधु छोड़ो, नंबर कौन है आपियो, किससे नंबर मिला, दोबारा फोन मत करना। ऐसा होता है। See, we do it for our coaching center, okay? We do it for our brand, but लोग नहीं मिलना चाहते, नहीं बात करना चाहते। तो रिस्पोंडेंट भी अगर ऐसे हमको टाल देता है तो ये सर्वे खत्म करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एंड दैट इज प्रिसाइसली द 5th पॉइंट। यस, point to faulty recording, exactly Mahi, well said. Now, तो यहाँ पे we will say the 5th point, that respondents may avoid meeting enumerators, which causes what? It causes delay. What delay it causes? It causes delay in collecting information. Now, few points have come. I'll just discuss them. Yes, Mahi, your point is already included. Nirmal, enumerator should have control over his anger and should have patience. I 100% agree with you. Or तुम लोग just see all these things what you are learning in this last 4th to 5th lecture. This is our 5th lecture. That what all things you are learning. तुम यहाँ पे देख रहे हो कि ये सब के में कैसे स्किल्स होनी चाहिए, और वही सब चीजें हमें भी हमारी जिंदगी में डेवलप करनी है। अब एंगर पे कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिस्पोंडेंट तुम्हें अवॉइड करेगा, रिस्पोंडेंट क्वेश्चंस डॉज करेगा। यू नो व्हाट इज डॉज? पूछा क्या, जवाब कुछ और दिया। क्वेश्चन पूछा कुछ और, जवाब मिला कुछ और। ऐसा पॉलिटिशियंस करते हैं, ऐसा फिल्म स्टार्स करते हैं कि क्वेश्चन कुछ और पूछा, वो जवाब कुछ और ही दे रहा है। पॉलिटिशियंस की तो आदत है। अगर आप उसको पूछोगे कि भाई इंडिया में अभी तक क्यों हर एक सिटीजन को प्योर गुड क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है, इतने साल हो गए आजादी के, पीने का पानी ચોખ્ખું પીવાનું પાણી કેમ નથી મળતું? तुम्हें लगता है इसका कोई आंसर मिलेगा तुम्हें कोई पॉलिटिशियन से? वो कोई और ट्रैक पे चला जाएगा कि અત્યારે કોવિડના કેસીસ ઘણા ઓછા થઈ રહ્યા છે, અમે વિચાર કરીએ છીએ કે લોકડાઉન જલ્દી જલ્દી બને એટલું ખોલી કાઢીએ। અલા પૂછું છું શું ને જવાબ શું આપે તું ભાઈ? ऐसा है ना, अर्नब के शो में बहुत होता है। टाइम्स नाउ, सॉरी नाउ इट इज रिपब्लिक, अर्लियर इट वाज टाइम्स नाउ। उसमें वो अर्नब आता है ना, वो पूछता कुछ और है और वो नेता कुछ और बक बक करता है, फिर अर्नब को आता है गुस्सा। तो यहाँ पे ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है व्हेन ह्यूमन बीइंग्स कम एंड वी वांट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। सामने वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर इंफॉर्मेशन निकालवाना है। तो ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू ऑल किड्स, यू आर द फ्यूचर।
आगे जाके तुम्हें भी लोगों के बीच में रहना है, लोगों के साथ काम करना है, इंफॉर्मेशन निकलवाना है। तो ये सब क्वालिटीज, कम्युनिकेशन, how to get work done, how to collect information, how you should be as a person, आईना देखो और खुद कैसे होने चाहिए। तो ये सब चीजें हम इसमें सीख रहे हैं। तो एकेडमिक्स तो है ही, बट अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स वी आर आल्सो लर्निंग अ क्वालिटी ऑफ अ गुड पर्सन, अ गुड प्रोफेशनल। ओके, एनीवेज, नाउ यहां तक तो हमारा क्वेश्चनर ऑफ बाय पोस्ट हो गया, क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर हो गया। नाउ आई वुड लाइक यू ऑल टू read from the textbook, highlight key points. I have also given so many points which I got it from you all only. उसको mix match करके अपनी notes बनाओ तुम लोग। Now textbook हो तो पेज नंबर 9 पे आ जाओ। वन लास्ट पॉइंट आई वांट टू डिस्कस विथ यू बिफोर वी मूव फॉर secondary data in the next session, okay, not this. Now पेज नंबर 9 में this point, last paragraph, okay, this is a very interesting point, okay. Now among the 3 methods of collecting primary data, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर सबके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। क्वेश्चनर बाय पोस्ट है, एनवलप, ब्लैंक एनवलप भेजना है विद पोस्टल स्टैम्प, और ये सब जो हमने डिस्कस किया है। एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि कंप्यूटर और मोबाइल फोन से भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर, तो एन्यूमरेटर के बारे में लिखा है यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। नाउ ये पैराग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ 3 methods of collecting primary data we have seen. So what are the 3 methods? One is direct inquiry. Second is indirect inquiry. Indirect inquiry, यानी we don't go to the respondent directly, but we collect information about respondent from various organizations, agency. Indirectly, we collect information. Then the third one is through questionnaire. So 3 we have seen the methods of collecting information or collecting primary data. Now which method to select? There is no definite rule, यानी ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसमें तो यही मेथड पे जाओ। Okay, the selection, this is a important point. The selection of method of inquiry mainly depends on the following aspect. किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड यूज करना है? फर्स्ट, spread of area under inquiry. Now if it's a geographically very wide area, then we have to go for method of questionnaire by post. So spread of area. Then purpose क्या है inquiry का? If you want, if the purpose is such that the information to be collected is to be of good quality information, then we would either go for direct inquiry or we would go for method of questionnaire by post. Then monetary provision, यानी पैसा कितना हमारे पास है, पैसा कम है तो और एरिया बहुत ही छोटा है तो डायरेक्ट इंक्वायरी खुद चले जाओ, इंफॉर्मेशन ले लो। अगर पैसा कम है और एरिया बहुत बड़ा है तो मेथड ऑफ क्वेश्चनर बाय पोस्ट, और पैसा बहुत सारा है तो मेथड ऑफ क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर या डायरेक्ट इंक्वायरी ऑल्सो। टाइम फ्रेम, फटाफट इंफॉर्मेशन चाहिए, फटाफट। देन पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्सपर्ट एन्यूमरेटर। अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अच्छे एन्यूमरेटर्स है ही नहीं, बहुत एडवर्टाइजमेंट दिए, बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया, लोगों को ट्रेन किया, फिर भी लोग ट्रेन नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे? तो मे बी वी गो फॉर बाय पोस्ट, दैट विल बी द बेटर थिंग। और एरिया बहुत ही छोटा है तो डायरेक्ट इंक्वायरी खुद ही चले जाओ या अपने पास 1-2 एन्यूमरेटर जो अच्छे हैं उनसे काम चला लो। देन
स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी बहुत हाई चाहिए तो मेथड ऑफ क्वेश्चनर बाय पोस्ट चलेगा ही नहीं. नाउ यू मे बी थिंकिंग कि सर तो फिर इतने सारे डिसएडवांटेज आपने बता दिए मेथड ऑफ क्वेश्चनर बाय पोस्ट के, तो भी लोग क्यों मेथड ऑफ क्वेश्चनर बाय पोस्ट या थ्रू ईमेल और थ्रू व्हाट्सएप यूजिंग गूगल फॉर्म या थ्रू इंटरनेट कलेक्ट करते हैं? बिकॉज वो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसमें उतना एक्यूरेसी नहीं चाहिए भाई, उसमें मुझे उतना एक्यूरेसी नहीं चाहिए, तो मैं क्यों इतना खर्चा करूं? I'll go for a cheaper option. So this is very important कि on what basis do you select the method of inquiry for collecting primary data? All of you understood this? आज के सेशन में किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ओके, होमवर्क लिख लो प्लीज. This homework you send it Wednesday, Thursday, and Friday. Okay. So I'll tell you when it's to be given. Okay, first let me give you the homework. Section D. Now, question 4, I want you to write again. Then question 5. Then question 6. Section E. Question number 8. Question number 8, question number 9, and question number 10. I think this is fine. This homework you send tomorrow by 12 o'clock. Is this okay? Is this okay?